and on we'll go. After completion of simple aggregative method and simple average of price relative method, we have another method called weightage index number. In weightage index number, we have weightage aggregative method. So today we are going to learn about weightage aggregative method. So here in the weightage aggregative method, we have total 6 formulas to solve the numericals, but in our syllabus only 3 types of formulas are coming. That is called Lesper's method, Paasche method and Fisher's method. How many methods we have? Only 3 methods we have to do: Lesper's method, Paasche method or Fisher's method, right? Because it is in your syllabus, right? Now let us start one by one for each of the formula, each of the method in the same formula, in the same numerical. Okay, so let us start today's numerical but while writing the formula first. सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले देख लेते हैं, इनके मेथड कौन कौन से हैं, उनके फॉर्मूले. This is the Lesper's method. We have Paasche's method, and Fisher's method. Okay, so these 3 methods we have. First is Lesper's method, second is Paasche's method and third is Fisher's method. Out of that we are just using the formula first. सबसे पहले देख लेते हैं इनके फॉर्मूले क्या हैं. P01 equals to formula for Lesper's method. Okay, Paasche's method में again we have sigma P1 Q1 upon P0 Q1 into 100. Now let us go for the Fisher's method. Again we have the formula for Fisher's method. P01 equals to, it should be in under root. ये किस में है? अंडर रूट में. सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1. अंडर रूट के बाहर है 100. सो आई होप यू ऑल आर एबल टू सी इट, है ना. आप सब लोग इसको अच्छे से देख पा रहे हो कि तीनों मेथड्स क्या क्या हैं, है ना. अब देखिए, अभी हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला कि हमें P1 और Q0 चाहिए. क्या चाहिए? P1 और Q0. तो पहले मैं लिख लेता हूँ P1 और Q0. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला वाला पार्ट. फिर चाहिए P0 Q0, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे P0 और Q0. ये भी हो गया. फिर हमें चाहिए P1 Q1, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया P1 Q1. ये भी हो गया. फिर चाहिए P0 और Q1, तो हमने लिख लिया P0 और Q1. ठीक है, बाकी इन दोनों के फॉर्मूले को मिलाकर बना है वो वाला फॉर्मूला. ठीक है, तो आई थिंक कि बहुत सिंपल सा होने वाला है ना. P1 Q0, तो P1 40 है और Q0 8 है, तो 40 into 8 it is 320, right. Then we are using 60. P1 और Q0 10, तो 60 into 10 it becomes 600. After that we have 50 and 15, so 50 into 15 we have 750, and after that we have P1 and Q0, 20 into 20 it becomes 400. ओके, क्लियर है ना. नाउ अब हमें करना है P0 Q0 को मल्टीप्लाई. P0 ये रहा और Q0 ये रहा, तो 20 into 8 160
फिर 50 इंटू 10 500, देन 15 इंटू 40 इट बिकम्स 600, 20 इंटू 20 becomes 400. P1, तो P1 this and Q1 this, 40 into 6 it's 240. Then again we have 60 into 5 it is 300. Then again we have 15 into 5 it is 750, and 25 into 20 right, and Q1 कितना है 6, तो 20 into 6 120 right. Then P0 and Q1 50 into 5 it is 250. Then Q1 is this and P0 is this, so 15 into 4 again 600, and the last is 25 into 20 it becomes 500. Is there any problem? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, बहुत सिंपल सा मेथड है, बहुत इजी सा मेथड है, बस सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है और मल्टीप्लाई तो आप सबको पहले से आता ही है ना। है अब हमें करना है इसका समीशन। सबसे पहले निकालेंगे सिग्मा P1 और Q0, फिर दूसरा है हमारा सिग्मा P0 Q0, फिर थर्ड है हमारा सिग्मा P1 Q1, और फोर्थ है हमारा सिग्मा P0 Q1। ठीक है, तो आप टोटल कर लेते हैं इनका चारों, 2 0 7 0। P1 Q0 टोटल करेंगे कितना आएगा 2070। अब P0 Q0 का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 1660 90 1790 1470। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा सबको। टोटल कैसे करना है आपको पहले से पता है, मल्टीप्लाई कैसे करना है ये भी आपको पता है, सब कुछ आपको पता है। बस अब सिंपली क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इस फॉर्मूले पे चलते हैं, सिग्मा P1 Q0, तो सिग्मा P1 Q0 हमारा कितना है 2070 अपॉन P0 Q0, तो P0 Q0 कितना है 1660 इंटू करना है हमको किससे 100 से। ऐसे ही आगे चलते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर सिग्मा P1 Q1 कितना है 1790 अपॉन P0 Q1 कितना है 1470 इंटू करना है किससे 100 से। सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, अंडर रूट में P1 Q0 दैट इज वी हैव 2070 अपॉन P0 Q0 की हमारी वैल्यू कितना है 1660 मल्टीप्लाई करेंगे। अब दूसरी वाली वैल्यू P1 Q1 कितना है हमारा 1790 और P0 Q1 कितना है 1470 और फिर रूट के बाहर 100 का मल्टीप्लाई। नाउ अब हमें 1 बाय 1 इसको सॉल्व करना होगा, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे जल्दी से फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो 207 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे डिवाइडेड 160, तो 20700 डिवाइडेड 166 हमारा कितना आंसर आ गया 124.69। कितना आंसर आ गया 124.69। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। इतना ही इजी है बस, और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। अब चलते हैं पेस्चे मेथड पर। अब पेस्चे मेथड को फिर से हम वही करेंगे कि 0 से 0 हमने कट कर दिया, 179 का डबल 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17900 हो जाएगा, डिवाइड बाय 147 इतना आ गया 121.77। ठीक है, अब ऐसे ही वहाँ पे चलते हैं सॉल्व। अब इस वाले मेथड में इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके हमारा कितना आंसर आ रहा है 124.69। तो हमने लिखा यहाँ पे 124.69 मल्टीप्लाई में हमारे पास 121.77, तो
तो 121.77 बाहर 100 का मल्टीप्लाई है। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 835 मल्टीप्लाई बाय 100 बाहर है। अब पहले इसको रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। रूट से बाहर निकालने के लिए हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं, वापस से इधर आ जाते हैं। अब इसको हम वापस यहाँ पे करते हैं। अब 1.51835 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 1.2322 और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे संग 100। ठीक है, क्या है हमारे संग मल्टीप्लाई में हो जाएगा 123.22। ठीक है, होप कि आपको ये बहुत इजी लगा होगा और रियली में इंडेक्स नंबर बहुत इजी है। ये इतना ही इजी मेथड था जो हमें करना था और इसके साथ हमारा इंडेक्स नंबर भी ख़त्म होता है। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही आ रहा था, राइट। तो आई थिंक कि ये सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ऐसी एक वीडियो